Hello everyone, welcome to Defense Studies. And in this video, we are going to discuss previous year polity questions of CAPF 2013 exam. So the first question is, the Parliament of India may form a new state by separation of territory from any state or by unifying any territory to a part of any states. So which of the following procedures is or are true in this regard? So this particular question is regarding the Article 3 of the Constitution of India. Article 3 किसके बारे में बात करता है? Means those state which are already in existence. Means those states like Haryana and Punjab, if center wants to redefine the boundary, it can use Article 3. But in case of Article 2, there is a slight difference. Means the non-existent state, like in case in future if we are going to acquire certain areas of Pakistan or China which are not a territory of India, in that case to make those areas our integral part we have to use Article 2. So this particular question is regarding Article 3. So the first statement is, can we separate any territory from any states and can unify that particular territory to that state by using simple majority and by the ordinary legislative process? Yes, this is the right statement because Article 3 में it is clearly written. So second is, on the recommendation of the President, who usually has to refer the bill to the legislature of the state which is or are going to affected by the changes proposed in the bill. देखो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. जिस भी स्टेट्स में कुछ भी चेंजेस होंगे रिगार्डिंग द बाउंड्री नेम, वो प्रेसिडेंट वो बिल दोज पर्टिकुलर स्टेट को रेफर करना होता है. थर्ड इज, दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट. नहीं, प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो अवर आंसर इज फर्स्ट 1 and 2 only. Second, a bill introduced in the parliament in order to become an act has to have which of the following procedures to be followed. ठीक है, बिल से बिल टू एक्ट बनने में, एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है. बिल क्या होता है? बिल आइदर कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा, अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो. ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, स्क्रूटनी हुई, जनरल डिस्कशन हुआ, उसके बाद हाउस उसको पास कर देता है. ठीक है, and then that particular bill is tabled before the president. So president either can use his veto, ठीक है, और simply give his assent to the bill. तो bill क्या बन जाता है? Act. So first statement क्या है? It is to be passed by both the houses of parliament. Correct statement है. Second is the president has to give his or her assent to become that bill to an act. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी राइट है. थर्ड क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू साइन और रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट. ये स्टेटमेंट गलत है, प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है. फोर्थ इज, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर एंड डिक्लेयर इट टू बी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. देखो सुप्रीम कोर्ट का रोल जब आता है जब बिल है ना जो एक्ट बन जाता है. ठीक है, जैसे NJAC एक्ट बनाया था, NJAC एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये बिल बनाया था गवर्नमेंट ने. बट सुप्रीम कोर्ट फाइंड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट और द एक्ट एज अ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलिफाइड कर दिया था. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कम्स इन टू पिक्चर आफ्टर द बिल बिकम एन एक्ट. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता. सो द करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ऑफिस कनेक्टेड with a religious or denominated institution may be reserved for members professing the particular religion to which the institution relates. ये particular topic जो है ये आर्टिकल 16 से रिलेटेड है. ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? देयर शिल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हुई है, एम्प्लॉयमेंट की बात है. ठीक है, आप किसी को भी उसमें अपोज नहीं कर सकते इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस जो स्टेट के अंडर है. ठीक है, सेकंड स्टेट में क्या है? नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ऑफ आइदर रिलीजन और रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट.
इसमें क्या है, रिलीजियस ग्राउंड मैंशनड है। तो रिलीजियस ग्राउंड पे आप किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को, ठीक है, डिबार्ड नहीं कर सकते टू बिकम और टू बी अपॉइंटेड एज एनी मेंबर ऑफ द दैट ऑफिस, ठीक है। फुल स्टेटमेंट क्या है, इट कैन बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। ये दोनों प्रोविजंस इट इज़ क्लियरली मेंशन इन आर्टिकल 16। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी इसमें, रॉन्ग। सेकंड क्या है, द स्टेट में रिजर्व एनी पोस्ट नहीं है, सम स्पेसिफाइड पोस्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। देखो ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्टली आर्टिकल 16 से उठाई गई है। सो आवर आंसर इज ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट और इसके बीच में डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वाइल द फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस ऑन स्टेट एक्शंस and directive principles are in the nature of instruments of instruction to the government of the day to day certain things and to achieve certain goals by their actions. Fundamental rights क्या हैं, they put restrictions on the states. somehow आपने देखा होगा right to privacy, right to freedom, right to life, ठीक है। these are certain rights given to the citizen of India, ठीक है, और सेंटर इसको ब्रीच नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, राइट टू स्पीच, ठीक है, दिस काइंड्स ऑफ राइट। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर दोज प्रिंसिपल्स जो स्टेट वाइल मेकिंग एनी पॉलिसी, वाइल मेकिंग एनी लॉ, जो अपने माइंड में रखता है, ठीक है। देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक गोल्स ना, ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट के माइंड में होने चाहिए। हाँ, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन वेलफेयर ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोविजंस इन आवर कमिंग पॉलिसी, ठीक है। सो द वेलफेयर ओरिएंटेशन जो है वो हमारा मेनली किस में मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हाउएवर requires to be implemented by legislation and so long as there is no law carrying out the policy laid down in directive principle, neither the state nor an individual can violate any existing law or legal right under the color of getting a directives. इस स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हाउएवर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द लेजिस्लेशन। जो भी प्रोविजंस है डीपीएसपी में वो लेजिस्लेशन उसको इम्प्लीमेंट करेगा थ्रू लॉ, ठीक है, उसका लीगल बैकिंग नहीं है, मीन्स आप उसको डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यू रिक्वायर्ड सर्टेन लॉज, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अनलेस यू हैव अ लॉ, ठीक है। सो अभी क्या है, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज टॉकिंग और डिस्कसिंग अबाउट टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। आर्टिकल 40 था, इट इज़ रिगार्डिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लेकिन ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, इन 1993 अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। उसके बाद वी हैव इंट्रोड्यूस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है, 50 साल के बाद लगभग ये आया। तो वी नीड अ लॉ टू इम्प्लीमेंट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थर्ड क्या स्टेटमेंट है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एनफोर्सेबल। मैंने अभी कहा ये नॉन एनफोर्सेबल है, मीन्स दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसको वो नहीं कर सकते एनफोर्स, ठीक है, ये पावरलेस दिस प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आवर आंसर इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। सो मदर टंग में किसी को भी इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड एजुकेशन में। सो आर्टिकल 350A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली मेंशन है दैट इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट ऑफ एवरी लोकल अथॉरिटी, जिसमें विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, ठीक है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2021 में, उसमें भी ये क्लियरली मेंशन है, वी हैव टू प्रोवाइड दिस instruction in their native language. So first statement right है। second क्या है, the constitution enjoys the union of India to provide and to promote
द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज और आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर चार्ज्ड है कोई भी एक्सपेंडिचर, वो नॉन वोटेबल है, उस पर वोट नहीं हो सकती, मीन्स इट इज़ नॉन वोटेबल। कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो चार्ज्ड हैं, मीन्स सैलरी ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, सैलरी ऑफ कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की सैलरी है, यूपीएससी चेयरमैन की सैलरी है, उसको आप वोट नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, बिकॉज अगर आप उस पर वोट करेंगे दैट इज़ समहाउ इंटरफेयरिंग विद द ऑटोनॉमी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द emoluments and allowances of the president and the expenditure relating to the office, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या है, सैलरी ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन एंड स्पीकर ऑफ बोथ द हाउसेस, ये भी करेक्ट है। एंड डेब्ट चार्जेस, ठीक है, जो भी उधार लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इज लाइबल टू चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन CFI ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ये मैंने यहाँ पे आई हैव रिटन ऑल दिस प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर है। 7th इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पीपल कलेक्टिवली। दो तरह के प्रिविलेजेस हैं, वन इज इंडिविजुअल, ठीक है, जो इंडिविजुअल MPs या MLA को मिलते हैं, दूसरा क्या है, हाउस के एज ए मेंबर्स को कलेक्टिवली जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसकी क्वेश्चन में बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड द राइट टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन बाय अदर्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, ठीक है, स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, ये भी किसका है, कलेक्टिव क्या है, प्रिविलेज है हाउस का। थर्ड क्या है, द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज, ये भी राइट है। फोर्थ क्या है, व्हाट इज सेड और डन विद इन द वॉल्स ऑफ पार्लियामेंट हाउएवर कैन बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो ये स्टेटमेंट क्या गलत है, इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, उनका कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी आप उसको इंक्वायर्ड नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते कि दिस पर्टिकुलर MPs या MLA ने ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो अवर आंसर इज ए। और इसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि कलेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, 44th अमेंडमेंट के एक्ट के अंडर क्या हुआ, इसमें क्या था कि मीडिया हाउसेस कैन पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, उससे पहले मीडिया हाउसेस को ये परमिशन नहीं थी। सो ये सब देखो, द पार्लियामेंट कैन सस्पेंड और एक्सपेल्स मेंबर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। और जो क्वेश्चन में जो पूछा था, द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउसेस एंड कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए। 8th क्वेश्चन क्या है, ए बिल इज डीम्ड टू बी ए मनी बिल, मनी बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मनी बिल लिखा है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। एक स्टेटमेंट आती है ना, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल बट नॉट एवरी फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल, ठीक है, वो करेक्ट है, बिकॉज मनी बिल इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द इम्पोजिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस, ठीक है, ये अगर इन चीज़ों में कुछ भी अमेंडमेंट हुई तो वो मनी बिल कहलाएगा। सेकंड क्या है, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बोरो करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको भी हम किस में रखते हैं, मनी बिल में। और इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये थर्ड स्टेटमेंट है। और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कि CFI को आपको कैसे हैंडल करना है, अगर उसमें आप कुछ चेंजेस लाते हैं तो वो भी मनी बिल के अंडर आएगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, प्रोविजंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेनल्टीज और फॉर डिमांड और पेमेंट ऑफ फी फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो करेक्ट आंसर क्या है, 1, 2 and 3। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज और आर करेक्ट। तो स्पीकर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है, द स्पीकर्स कंडक्ट, ठीक है, स्पीकर्स कंडक्ट इन रेगुलेटिंग द प्रोसीजर्स ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है। मेंटेनिंग ऑफ ऑर्डर अगर है
हाउस का, अगर उसमें स्पीकर कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेता है, मींस किसी भी एमपीज को या एमएलए को हाउस से बाहर निकाल देता है, ठीक है, फॉर द ब्रीच ऑफ एनी डिसिप्लिनरी मैटर, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। बट इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, विच इज़ एक्टिंग एज ए ट्राइब्यूनल, ठीक है, अगर स्पीकर ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट करके कोई डिसीजन लेता है ऑन द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में बोला है कि स्पीकर का जो जजमेंट है, जो डिसीजन है, वो दैट इज़ अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसको जुडिशियल रिव्यू दिया जा सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, नो डाउट। सेकेंड इज बिसाइड प्रिसाइडिंग ओवर हिज और हर ओन हाउस द स्पीकर पोजेस सर्टेन पावर्स लाइक प्रिसाइडिंग ओवर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग होगी, अगर प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग कॉल करता है, अगर किसी ऑर्डिनरी बिल में देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, कॉल कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? वाइल ए रेजोल्यूशन ऑफ हिज और हर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन द स्पीकर shall preside but shall have no right to speak and shall no right to vote। देखो उस टाइम स्पीकर प्रिसाइड भी नहीं करेगा, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्या है? बी। आंसर क्या है? बी, 1 and 2 ओनली। स्पीकर के रिलेटेड मैंने सभी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द पावर ऑफ द स्पीकर, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ से पूछा जा सके। स्पीकर क्या? हेड ऑफ लोकसभा, और स्पीकर डिराइव्स हिज पावर 3 सोर्सेज से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, इधर अगर राज्यसभा की बात हो रही है तो वहाँ पे चेयरमैन लिखा होगा, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो है आज के टाइम में, और वोटिंग पावर इसकी देख लीजिए, ही डज नॉट हैव द वोटिंग पावर इन द फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन अगर जब टाई होता है, ठीक है, टाई के केस में ओनली द स्पीकर कैन वोट। क्वेश्चन नंबर 10, अ स्पीकर shall be disqualified for being chosen and for being a member of either house of the parliament if disqualification के regarding है member of parliament या फिर member of state legislative assembly हैं, उनको disqualify कैसे किया जा सकता है? अगर they are holding any office of profit under the government of India, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। और सेकंड क्या है? द स्पीकर और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, अनसाउंड माइंड्स मतलब थोड़े पागल किस्म के हैं, ठीक है, उनको भी क्या है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। थर्ड क्या है? रिमेन एब्सेंट 60 दिन तक विदाउट परमिशन हाउस की, वो एब्सेंट है, तो जब भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो आर्टिकल पूछा जा सकता है आपको इससे, आर्टिकल 102 जो कि है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, और 191 191 ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये याद रखना। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में डिफाइंड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। 4 पर्टिकुलर पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट अपने साथ लेके आया था, यह पैरामीटर पढ़ लीजिएगा। 11th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ सिटिंग ऑफ ए हाउस, ठीक है, हाउस की जैसे लोकसभा या फिर राज्यसभा की टर्मिनेशन करनी हो आपको, ठीक है, तो वो कैसे होगी? ओनली द हाउस ऑफ द पीपल इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, बिकॉज राज्यसभा का आप डिसोल्यूशन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस। सेकेंड क्या है? द पावर ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन आर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड इज द पावर टू एडजर्न द डेली सीटिंग ऑफ द हाउस। देखो आपको इसमें कंफ्यूजन होगी कई बार, डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट। डिसोल्यूशन क्या है? जैसे लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, आफ्टर एक गवर्नमेंट जो है चेंज हो जाती है तो हाउस को डिसोल्व करना पड़ता है 5 साल के बाद। प्रोरोगेशन क्या है? आपने इनडेफिनेट टाइम के लिए हाउस को क्या कर दिया? प्रोरोगेट, और ये कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, इनडेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? अर्जेंट,
अर्जेंट मीन्स आपको स्पेसिफिक टाइम लिखना होगा कि हाउस इज़ अर्जेंट फॉर 2 डेज़ या टिल आफ्टरनून या फिर 1 मंथ या फिर 15 डेज़, ठीक है। ये पावर किसके पास है, ये है स्पीकर के पास। सो अर्जेंटमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, आपको तीनों टर्म इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रोरोगेशन जो अर्जेंटमेंट जो है वो कौन कर सकता है, स्पीकर, तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या है, द पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिसॉल्व एज इट इज़ ए परमानेंट चैम्बर। पार्लियामेंट की जगह यहाँ पे राज्यसभा लिखना चाहिए था, ये क्वेश्चन में गलती है। सो आवर आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये तो करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई मेंबर जो है, आपको कोई कैंडिडेट, ठीक है, मिनिस्टर बनाना है, लाइक इन केस ऑफ अरुण जेटली जी के केस में था या फिर किसी की भी केस में था, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द मेंबर फॉर 6 मंथ। उसके बाद विदिन 6 मंथ आपको उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कोई भी इलेक्शन जीतना होगा, ठीक है, टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और उनको नॉमिनेट भी किया जा सकता है थ्रू प्रेसिडेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एनी वन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ ए मिनिस्टर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years नहीं है, 6 months है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, पर्सन शैल नॉट बी लेस देन 25 years ऑफ एज इन ऑर्डर टू बिकम अ मिनिस्टर। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, सो आवर आंसर इज सी। 13th क्या है, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एडजुकेट्स डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, to public services and post in connection with the affairs of union. So all the central services, be it of paramilitary forces or defense forces or IAS and IPS, ठीक है, इनके लिए क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है, जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी इसके अंडर आते हैं, यस करेक्ट आंसर है। थर्ड क्या है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं या फिर पर्सनल हैं या फिर सर्वेंट्स हैं, उनको भी हम C8 के अंडर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंडर क्या एडजुकेट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का अलग ही एक प्रोसीजर होता है, उसके अंडर, ठीक है, उनके ऑफिसर्स और सर्वेंट को एडजुकेट किया जाता है। सो आवर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ JS वर्मा कमेटी, उस टाइम पे कोई करंट अफेयर होगा, उन्होंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंडर, ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, तो ये पूछ रहे हैं उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किए थे। सो करेक्ट आंसर क्या है, ओनली फोर्थ। सो फोर्थ स्टेटमेंट है, क्वेश्चन रिगार्डिंग मोरल कैरेक्टर विल नॉट बी पुट टू द विक्टिम ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू ऑर्डिनेंस उस टाइम एक्सेप्ट किए थे। 15th क्वेश्चन क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस वर क्रिएटेड अंडर द, आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर ये दोनों क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट इनको दिया गया था, एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस को। लेकिन अभी रिसेंट में अगर देखें तो अंडर 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो एंग्लो इंडियंस की पोस्ट रिजर्व थी इसमें पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अगर आर्टिकल देखें तो 331 और 331 एंग्लो इंडियंस की अपॉइंटमेंट कहाँ थी, लोकसभा में, और अंडर 333 के अंडर कहाँ थी, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। सो दीज आर द आंसर की आप यहाँ से भी बाद में टैली कर सकते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम फॉर 2022 में जो होने वाला है, स्पेशली फॉर पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 के लिए जितनी भी आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर उसमें ग्रामर का क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सब हमने उसमें कवर किया है। सो आप इसमें इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF चाहिए, पॉलिटी क्वेश्चंस MCQ सीरीज़ की, सो यू कैन गो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, और या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे यूट्यूब लिंक पे। सो दीज आर फ्यू ग्लिम्स जो हमने CAPF पेपर 2 में हमने
तैयार किया है कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स में अगर आप एनरोल होते हैं सो आपको ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ऑल हॉट टॉपिक्स लाइक नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, कम्युनल वायलेंस, साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, रेडिकलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट है जो अभी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू द JNK इंसर्जेंसी, ठीक है। और जो मॉडल आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। जो UPSC CAPF में जितने भी 2013 टू 2021 तक ऐसे टॉपिक्स आए हैं उसके आपको मॉडल आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और करंट अफेयर्स, जो करंट डेवलपमेंट है हमारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स में, जो भी चेंजेस आए हैं या फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस में, ठीक है, वो भी आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराया जाएगा। सो इंडियन सोसाइटी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है टाइम एंड अगेन, जो कि CAPF में पूछा जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड जैसे वीमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ग्लोबलाइजेशन, रिसेंटली अर्बनाइजेशन पूछा था, ठीक है। पॉपुलेशन एसोसिएटेड भी काफ़ी पूछी जाती हैं। ह्यूमन राइट इशू जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, जेंडर इश्यूज़ पे, चाइल्ड लेबर पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, सोशल जस्टिस पे आया हुआ है। एग्रीकल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UPSC का, हमेशा इस इशू पे कुछ ना कुछ UPSC पूछता रहता है। जैसे बहुत बार पूछा है सस्टेनेबल फार्मिंग, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्म वेवर्स, ठीक है। तो ये 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो सीनो पाक अलायंसेस या फिर चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है, ठीक है, उसके बाद इंडिया और उसके नेबरहुड जैसे रिसेंट चेंजेस वी हैव सीन विद नेपाल, बायलैटरल रिलेशनशिप इतनी फ्रूटफुल नहीं रही है, एंड मालदीव के साथ कुछ प्रॉब्लम है, श्रीलंका के साथ कुछ प्रॉब्लम है, बट ऑल्दो बांग्लादेश के साथ ठीक ठाक रिलेशनशिप है। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में जैसे रोल ऑफ गवर्नर, ARC की रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस की जाएगी कि क्या रिकमेंडेशंस थी। पार्लियामेंट फंक्शनिंग पे आपको जैसे टूल्स ऑफ पार्लियामेंट में जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कैसे अपोजिशन अकाउंटेबल बनाता है एग्जीक्यूटिव्स को या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। स्पीकर का क्या रोल होता है, स्पीकर बहुत डिबेटेबल था लास्ट 1 और 2 ईयर्स में, और ऑर्डिनेंस भी बहुत डिबेटेबल है कि वाई ऑर्डिनेंस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इन्हें डेमोक्रेसी लाइक इंडिया में। और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में लाइक रिवर शेयरिंग, वाटर, ये एक हमेशा प्रॉब्लम रहती है 2 स्टेट्स के बीच में, चाहे वो सतलुज यमुना कैनाल हो बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, या फिर कावेरी वाटर शेयरिंग इशू हो बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और बाउंड्री इश्यूज़ भी एक प्रॉब्लम रहती है। वी हैव सीन अ फ्लेयर अप बिटवीन म्यांमार, दिस त्रिपुरा एंड मणिपुर के बीच में कुछ वायलेंस हुआ था एंड पीपल वर ऑल्सो किल्ड ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट, ठीक है। कुछ पुलिसमैन भी उसमें की कैजुअलिटी हमने रिपोर्ट की है, ठीक है। सो वी वाइंड अप हियर।